السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طالب اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ دل کے مریضوں کے لیے خوشخبری، جناح ہسپتال میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے کارڈک ایمرجنسی کو آپریشنل کر دیا گیا۔ ایمرجنسی میں پرائیویٹ اینجیوگرافی بھی ہو سکے گی۔ میو ہسپتال میں 8 ماہ کا احسان قصبے سے جاں بحق، شہر میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 51 ہو گئی، جبکہ مختلف اسپتالوں میں 81 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی کراچی ایکسپریس نائٹ کوچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز چودھری کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ انتخابات کے نتائج مشکوک ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اتوار کو غیر منصفانہ الیکشن کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کرے گی۔ ادھر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کا ڈیفنس چوک میں 5ویں رات بھی دھرنا جاری۔ پی ایچ اے یونین کی جانب سے جیلانی پارک میں مسلم لیگ نون کی جیت پر جشن، ڈھول کی تھاپ پر رقص، موچی دروازے میں حمزہ شہباز شریف کی کامیابی پر مٹھائی تقسیم۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کے ملازمین کا ایم ڈی عارف حمید کے حق میں کشمیر روڈ ہیڈ آفس میں احتجاجی مظاہرہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز سے ایم ڈی کا ساتھ دینے کا مطالبہ۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے کانٹریکٹ ملازمین کا مستقل نہ کیے جانے اور 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ۔ موجودہ نظام کے تحت تبدیلی ممکن نہیں، اگر ایسا ہوتا تو انتخابات میں حصہ لیتے، ڈاکٹر طاہر القادری کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ وحدت کالونی کے علاقے غوثیہ کالونی میں مکان کے تنازع پر بیٹے اور بہو کا ماں پر تشدد، ماں زندگی کی بازی ہار گئی، میاں بیوی گرفتار۔ سسٹمنٹ اسمگلنگ کا بادامی باغ لوہا مارکیٹ میں چھاپا، ایرانی ساختہ لوہے کے لاکھوں روپے مالیت کے اسمگل شدہ گارڈز اور نیٹو سپلائی کا جنریٹر قبضے میں لے لیا۔ بینکنگ کوڈ کا آٹو، پرسنل اور کریڈٹ کارڈ لون پر خفیہ چارجز کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بینکوں کو شہریوں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے یوٹیوب کی بندش کے خلاف دائر درخواست پر گوگل انتظامیہ سے دوبارہ جواب طلب کر دیا۔ کیپٹن سلمان کی شہادت پر گارڈن ٹاؤن میں صوبائی وزیر داخلہ طارق پرویز سمیت پولیس افسران کے ایڈیشنل ایس پی امتیاز سرور سے تعزیت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں طلباء کو ملازمت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جابس فیئر کا انعقاد، 35 کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگائے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر خالد پرویز کی زیر صدارت اردو بازار کے تاجروں کا اجلاس، پرائیویٹ پبلشرز کی کتب کو درسی کتب کا درجہ دینے کی مذمت۔ سٹی اسکول کے زیر اہتمام خواتین میں صحت عامہ کا شعور اجاگر کرنے کے لیے آج کی بیٹی کل کی ماں کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد، ڈاکٹر فوزیہ منو خان کی شرکت۔ سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری، شہر کے صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت 650 روپے فی تولہ کمی سے 53,500 روپے ہو گئی۔ فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کی جانب سے سنائی ہوٹل میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کی خوشی میں کیک کاٹنے کی تقریب، سید نور کا کہنا ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی خوشحالی کے لیے حکومت بھارتی فلموں پر ٹیکس لگائے۔ لاہور میوزیم کے آڈیٹوریم میں معروف کتھک ڈانسر ناہید صدیقی کی پرفارمنس، برٹش کونسل کے ریجنل ہیڈ رچرڈ واٹر کی شرکت۔ آئی سی سی T20 کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے 14 رکنی قومی ویمن ٹیم کا اعلان، ثنا میر کپتان اور بسمہ معروف نائب کپتان مقرر۔ اور 10ویں قومی ویمن سینئر جونیئر سائیکلنگ چیمپئن شپ کا آغاز، افتتاحی روز آرمی نے 2 گولڈ میڈل جیت کر برتری حاصل کر لی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دل کے مریضوں کے لیے خوشخبری، جناح ہسپتال میں 10 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی کارڈک ایمرجنسی کو آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے پر آنے والے مریضوں کو جدید علاج میسر ہوگا۔ جناح ہسپتال کے شعبہ حادثات سے متصل جدید طبی سہولتوں سے آراستہ کارڈک ایمرجنسی کی تکمیل کے بعد اس کو آپریشنل کر دیا گیا ہے۔
दिल के आर्जा के बायस जनाह अस्पताल में आने वाले मरीजों को कार्डियक इमरजेंसी में जदीद इलाज मुआवजा मैसर होगा। कार्डियक इमरजेंसी में जदीद एंजियोग्राफी मशीन भी नस्ब की गई है, जिसके जरिए दिल के मरीजों को प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत मैसर हो सकेगी। शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर अकरम ने बताया कि कार्डियक इमरजेंसी के क़याम पर 10 करोड़ रुपए लागत आई है। ये मंसूबा 2009 में तश्कील दिया गया था, जो अब मुकम्मल हो गया है। प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर अकरम ने बताया कि कार्डियक इमरजेंसी के क़याम से अब दिल के दौरे के साथ आने वाले मरीजों को इलाज की जदीद सहूलत मैसर होगी। शहर में खसरे का खतरा बदस्तूर मौजूद है। म्यूं अस्पताल में 8 माह का एहसान खसरे का शिकार होने के बाइस दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में खसरे के 81 नए केसेस सामने आए हैं। खसरे के मर्ज की शिद्दत में ताहाल कमी वाक़ई नहीं हुई। म्यूं अस्पताल में शेरा कोट के रिहायशी 8 माह के एहसान शफाक को खसरे के मर्ज में मुब्तला होने के बाद दाखिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरे के 81 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि अब तक खसरे से 51 बच्चों की जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली कराची एक्सप्रेस नाइट कोच का इफ्तिताह कर दिया गया। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली कराची एक्सप्रेस नाइट कोच को कुछ अर्सा कबल बंद कर दिया गया था। कराची एक्सप्रेस नाइट कोच की नई कोचेस के साथ मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट मकसूद नबी और चीफ कमर्शियल मैनेजर आबिद महमूद समेत रेलवे के दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। कराची एक्सप्रेस नाइट कोच 1 AC स्लीपर, 3 AC बिजनेस क्लास कोचेस, 9 इकोनॉमी क्लास कोचेस और 1 डाइनिंग कोच पर मुश्तमिल है। ट्रेन का किराया इकोनॉमी क्लास के लिए 1520, बिजनेस क्लास के लिए 4410, जबकि AC स्लीपर का किराया 6990 रखा गया है। कस्टम एंटी स्मगलिंग ने बादामी बाग लोहा मार्केट में छापा मारकर ईरानी साख्ता लोहे के लाखों रुपए मालियत के स्मगल शुदा गार्डर्स और नेटो सप्लाई का जनरेटर तहवील में ले लिया है। कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने बादामी बाग लोहा मार्केट के इलाके में कार्रवाई करते हुए ईरानी साख्ता लोहे के गार्डर से लदी हुई 3 ट्रॉलियां पकड़ ली। कस्टम हुक्काम के मुताबिक स्मगल शुदा गार्डर्स का वजन 100 टन से ज्यादा, जबकि मार्केट वैल्यू तकरीबन 50 लाख रुपए है। कस्टम हुक्काम ने दारोगावाला के इलाके में LES 1589 नंबरी मसले को रोककर नेटो सप्लाई का चोरी किया हुआ 15 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का जनरेटर भी कब्जे में ले लिया। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुक्काम का कहना है कि तहवील में लिया गया स्मगल शुदा जनरेटर और लोहे के गार्डर्स भाग के सरकार जब्त कर लिए गए हैं, जबकि मालकान का सुराग लगाने के लिए तफ्तीश जारी है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाह ना मिलने और मुस्तकिल ना किए जाने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें ड्यूटी पर भी नहीं लिया जा रहा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के दफ्तर के सामने बिलाल मुख्तार, हसन साइम, दानिश अली, आदिल बशीर, राजा नदीम, शाहिद मसूद, मोहम्मद आरिफ, बिल्लू बेग, मलिक फरहान और दीगर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने सड़क पर लेट कर एहतजाज किया, धरना दिया और सीना कोबी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 15 जनवरी से रोजाना ड्यूटी पर आ रहे हैं, लेकिन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का अमला उन्हें हाजिरी नहीं लगाने दे रहा और उन्हें 3 माह से तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के किसी भी ऑफिसर ने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि उनके मुतालबात तस्लीम न किए जाने तक वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज की ज़ेर सदारत उर्दू बाजार के ताजरों का अहम इजलास हुआ, जिसमें प्राइवेट पब्लिशर्स की कुतुब को दरसी कुतुब का दर्जा देने की मजम्मत की गई। अंजुमन ताजरान के ऑफिस में मुनाकिदा इजलास में इम्तियाज अली, औरंगजेब, अब्दुल हमीद, रहीम भाई, मोहम्मद आजम भट्ट, एजाज अहमद, शफीकुर रहमान, जवाद रहीम और शब्बीर अहमद भट्टी समेत उर्दू बाजार से ताल्लुक रखने वाले ताजरों ने शिरकत की। इजलास में शरीक ताजरों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इजलास से खिताब करते हुए ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज ने उम्मीद जाहिर की कि नई मुंतखब हुकूमत ताजरों और आवाम की मुश्किलात का इदराक करते हुए जल्द एनर्जी बहरान का खात्मा मुमकिन बनाएगी। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत प्राइवेट पब्लिशर्स की कुतुब को दरसी कुतुब का दर्जा देने और उनमें पाई जाने वाली बेज़ाब्तगियों का जल्द जायजा ले। खालिद परवेज ने नई हुकूमत से निसाब से इस्लाम, सहाबा कराम, नजरिए पाकिस्तान, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल समेत मशाहिर के मज़ामीन खारिज करने का फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शरह ख्वानदगी में इजाफा नई हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबा को मुलाजमत के मौके फराहम करने के लिए जॉब्स फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें 35 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। मजीद जानते हैं अकमल सोमरू की इस रिपोर्ट में।
जीसी यूनिवर्सिटी के बुखारी ऑडिटोरियम में कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेंटर के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा जॉब्स फेयर में बीएस ऑनर्स फाइनल सेमेस्टर्स और एमफिल के तलबा और तालिबात ने खसूसी तौर पर शिरकत की। जॉब्स फेयर में पेल, टेक्नोसॉफ्ट, सिस्टम लिमिटेड, पैन एशियन ग्रुप, नेटसोल, शौकत खानम हस्पताल, फजलदीन एंड सन्स, डायमंड ग्रुप और कशफ फाउंडेशन समेत 35 कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान ने स्टॉल्स का खसूसी तौर पर दौरा किया। कंपनियों के नुमाइंदों ने आखिरी सेमेस्टर्स के तलबा और तालिबात की तफसीलात जमा की और मौके पर ही इनसे शॉर्ट इंटरव्यूज भी किए गए। जॉब्स फेयर में शिरकत करने वाले तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें मुलाजमत के हुसूल के लिए अच्छा मौका फराहम किया है। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स के बारे में बताया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो बहुत ज़बरदस्त है। जॉब्स भी होनी चाहिए, लेकिन इनको चाहिए था कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की तरफ दे, कि स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करें कि आप खुद अपना बिजनेस करें, कि ये नहीं कि सारी उम्र आप जॉब्स ही करते रहे। इट वॉज अ वेरी गुड और काफ़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग ये अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। कंपनियों के नुमाइंदों का कहना था कि उनकी कोशिश है कि वो जीसीयू से बेस्ट टैलेंट तलाश करके उन्हें अपने यहाँ मुलाजमत फराहम करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तलबा को इंटर्नशिप के मौके भी फराहम किए जाएंगे। मैं यहाँ पे एज करीम बख्श को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम स्टूडेंट्स को बेसिकली गाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने किस तरह अपना सीवी बनाना है, किस तरह उसने इंटरव्यूज में देना है। स्टूडेंट्स को यही एडवाइस है कि वो जितना अपने आप को डिफरेंट टूल्स के साथ कर सकते हैं, जितने भी टूल्स वो सीख सकते हैं, उनके लिए बेहतर है, उनको जॉब में ज़्यादा कंपेटिटिविटी मिलेगी। जीसी यूनिवर्सिटी के सालाना जॉब्स फेयर के जरिए तलबा को मुलाजमत के मौके फराहम करने की कोशिश से ग्रेजुएट तलबा में बढ़ती हुई बेरोजगारी के रुझान पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर एजाज चौधरी का कहना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंतखाबात के नताइज मशकूक होते जा रहे हैं। पीटीआई इतवार को होने वाले पार्टी इजलास में गैर मुनसिफाना इलेक्शन के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान करेगी। लाहौर प्रेस क्लब में तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर डॉक्टर एजाज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर यास्मीन राशिद और NA93 से उम्मीदवार चौधरी इशफाक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली की है, जिसके तहरीरी और वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होश के नाखुन ले और जमहूरियत और सियासत की बिसात उलटने से पहले धांधली के खिलाफ एक्शन ले। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना 5वें रोज भी जारी रहा। इस दौरान पार्टी कारकुन आलियान गर्मी की शिद्दत के बायस बेहोश हो गया। NA 125 और 122 में मुबैना धांधली के खिलाफ गाजी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुन 5 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मज़कूरा हल्कों में इंतखाबात दोबारा कराए जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुबैना धांधली का नोटिस नहीं लेते, तब तक धरना जारी रहेगा। कारकुनों का कहना था कि चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद वो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। और नाज़रीन, अब बुलेटिन में बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जारी धरने के हवाले से। डिफेंस गाजी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से मुबैना धांधली के खिलाफ धरना आज 5वें रोज में दाखिल हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिफत अब्बास से। रिफत अब्बास, बताएगा क्या अपडेट्स हैं और वहाँ पर लोगों की कितनी बड़ी तादाद है, और लोग वहाँ पर कम हुए हैं या फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ रही है? इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर पीटीआई के जहां पर जो कारकुन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ मौजूद हैं, जो कि इस हल्के में मुबैना धांधली के खिलाफ यहां पर इकट्ठे हैं। और ये धरना आज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। 5 रोज़ हो चुके हैं इस धरने को, लेकिन इनके जोश और जज्बे में कमी वाक़ई नहीं हुई है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है और धांधली के खिलाफ भी यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर अभी जो नौजवान और दूसरी जो क़यादत है उन्होंने खिताब भी किया है, जिसमें अब से कुछ देर पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने खिताब किया यहाँ पर धरने के शुरका से। उन्होंने इमरान खान का मैसेज भी यहाँ पर पहुँचाया। इमरान खान के मैसेज पहुँचाते हुए उनका कहना था कि इमरान खान ने यहाँ पर हिदायत की है कि हम 3 दिन का जो अल्टीमेटम दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और जिसका 1 रोज़ आज गुजर चुका है, अब 2 रोज़ बाकी हैं।
इन दो रोज़ के बाद जो है ये धरना जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने दिया जाएगा और उसमें कारकुनों की भरपूर तादाद जो है वो शरीक होगी। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो खिताब जारी हैं, यहाँ पर जो नौजवान है क़यादत है वो यहाँ पर खिताब कर रहे हैं और अपने जो नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर धरने में शरीक हैं, जो बच्चे बूढ़े ख़वातीन हैं, उनके जज्बे को सराह रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी खिताब करते हुए यहाँ के जो लोग हैं, धरने में शरीक लोग हैं, उनके जज्बे को सराहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बात की गई है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बात की गई है कि वहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि वैसे मुश्किल सूबा है लेकिन उस सूबे को पीटीआई जो है एक मॉडल सूबा बनाकर पेश करेगी। इसके अलावा कराची की बात करते हुए उनका कहना था कि कराची के जो हालात हैं वहाँ भी इस वक्त जो है पीटीआई के कारकुन जो हैं वो अभी तक डटे हुए हैं और उनके जज्बे को भी उन्होंने सराहा है। और इसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तादाद है इस वक्त धरने के शुरका की वो शाम से अब कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं और बीच में जो खवातीन जो हैं वो यहाँ पर बैठी हैं, उनका जज्बा जो है भरपूर है। और हम यहाँ पर कुछ जो हैं खवातीन हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनका जज्बा क्या है यहाँ पर। जी आप बताइएगा कि क्या जज्बा है और आप कब तक यहाँ पे धरने में रहेंगे? हम तब तक रहेंगे जब तक हमें अपना इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जज्बा है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने एक अल्टीमेटम दिया है, 2 दिन का वक्त दिया है, 3 दिन का वक्त दिया है, 1 दिन गुजर गया, अब 2 दिन का वक्त है कि ये इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने अब धरना होगा। आप बताइएगा कि आप वहाँ भी जाएंगे? आप लोग वहाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी जाएंगे। अगर ये लोग कोई डिसीजन नहीं करते, कोई स्टेप नहीं उठाते इंसाफ के लिए, तो हम वहाँ भी जाएंगे। जी इनका कहना है कि वो जो अभी इमरान खान ने जो अल्टीमेटम दिया है उस हवाले से वो वहाँ भी जाने को तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी जाएंगे अगर 2 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। और यहाँ पर जो जी बहुत शुक्रिया रिफत अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, रिफत अब्बास डिफेंस गाजी चौक में मौजूद थे और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी धरने के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। हाजिर होंगे एक तवक्कुफ के बाद, देखते रहिए सिटी 42। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का जश्न जारी है। शहर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। PP 142 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की कामयाबी की खुशी में मोची दरवाजे में मिठाई तकसीम की गई। अंदरून मोची गेट वकास गुजर के दफ्तर में मिठाई तकसीम करने की तकरीब में मियां नन्हा ठेकेदार सच्ची बट मियां जमील ने खुसूसी शिरकत की। नन्हा ठेकेदार का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की अंदरून लाहौर से कामयाबी यहाँ के रहने वालों की कामयाबी है। PHA यूनियन की जानिब से भी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर जश्न का एहतमाम किया गया। मुलाजमीन ने नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर की आमद पर ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाई तकसीम की। गौसल आजम रोड पर वाक़े जिलानी पार्क में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की स्टाफ यूनियन की जानिब से हालिया इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की वाज़े बरतरी पर मनाए जाने वाले जश्न में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के सदर चौधरी शहजाद अनवर, जनरल सेक्रेटरी CBA PHA हाफिज इब्रार अहमद और मुमताज अली खान ने शिरकत की। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वर्क चार्ज मुलाजमीन को इख्तिदार में आते ही मुस्तकिल कर दिया जाएगा। मजंग में वाक़े मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में लीगी रहनुमा अजासिम शरीफ ने इलेक्शन में पार्टी की कामयाबी पर मिठाई तकसीम की। अजासिम शरीफ का कहना था कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं और इसी वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया है। हल्का PP 138 में नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट की फतह की खुशी में मिठाई तकसीम की गई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की गई। नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट का कहना था कि अवामी मसाइल को हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। गजाली सलीम बट ने कहा कि वो हल्के में पानी का मसला जल्द हल कराएंगे। तकरीब में मलिक एजाज, यूनुस खान, शौकत बट, साजिद बट समेत मुतादिद अफराद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज़ाद हैसियत से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले जाम कमाल और असगर शाह ने मुलाकात की, जबकि दोनों अरकान ने PMLN की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। जाती उम्रा में PMLN के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली जाम कमाल और असगर शाह ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें हिमायत की यकीन दहानी कराई। इशरा बाजार में इस्तकबालिया के मौके पर नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि हल्का 122 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। नून लीग ने हमेशा आवाम की खिदमत की और आइंदा भी करती रहेगी। कारकुनों और ताजरों ने सरदार अयाज सादिक की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की और जगह जगह उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी अख्तर रसूल, मियां तारिक, मियां शाहिद, चौधरी बाबर मजीद, मियां जमशेद, चौधरी अनीस, चौधरी फयाज और चौधरी यूनुस, एजाज शाफी, मलिक नासिर गुजर, मलिक आसिफ और खुर्रम खान शरीक थे।
پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا ہے کہ ملک میں تبدیلی لانے کے خواہشمند نوجوانوں کو صاف، شفاف اور عوامی نظام لانے کے لیے ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ 6 ماہ میں جو کچھ کہا وہ درست ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واحد انتخابات ہیں جن کے نتائج کے خلاف جیتنے اور ہارنے والے دونوں احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف غیر آئینی اور غیر شفاف نظام کی بدولت ہو رہا ہے۔ طاہر القادری نے کہا کہ عالمی طاقتیں پاکستان میں طالبان دوست حکومت لانا چاہتی تھی جس میں وہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے معروف گلوکار اور پی ٹی آئی کے رہنما ابرار الحق کی جانب سے اساتذہ کے حوالے سے ریمارکس پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ابرار الحق کے معافی مانگنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے اسکول اساتذہ کے احتجاج میں پنجاب ٹیچرز یونین کے مرکزی صدر رانا لیاقت علی، جنرل سیکرٹری سجاد اکبر قاسمی سمیت یونین کے دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کے دنوں میں اساتذہ نے انتہائی ایمانداری اور محنت سے مسلسل 3 روز ڈیوٹیاں کی، لیکن ابرار الحق کی جانب سے اساتذہ پر لگائے گئے الزامات قابل مذمت ہیں۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کی جانب سے 10ویں ویمن سائیکلنگ چیمپئن شپ میں سینئر اور جونیئر کیٹیگری کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی روز آرمی نے 2 گولڈ میڈل جیت کر برتری حاصل کر لی۔ ابتدائی روز ہونے والے 3 کلومیٹر ٹیم پرسوٹ ایونٹ میں آرمی کی ٹیم فاتح قرار پائی۔ آرمی نے مقررہ فاصلہ 4 منٹ 19 سیکنڈ میں طے کیا۔ وابڈا نے دوسری اور پنجاب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 500 میٹر انفرادی ٹائم ٹرائل میں سندھ کی فضا نے مقررہ فاصلہ 54 سیکنڈ میں طے کر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ پنجاب کی رئیسہ دوسرے اور خیبر پختونخوا کی حلیمہ تیسرے نمبر پر رہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ویمن ونگ نے ICC گلوبل T20 کوالیفائنگ ٹورنامنٹ کے لیے 14 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ثنا میر کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے۔ PCB میڈیا ڈپارٹمنٹ کے مطابق بسمہ معروف نائب کپتان جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں نین عابدی، ندا راشد، جویریہ ودود، رابعہ شاہ، اسماویہ اقبال، سمیرہ صدیقی، سعدیہ یوسف، ناہیدہ بی بی، بطول فاطمہ، کانتا جلیل، ارم جاوید اور جویریہ کے علاوہ ڈیانا بیگ، نائلہ نذیر، سدرہ امین، مرینا اقبال بھی قومی ٹیم کا حصہ ہوں گی۔ ٹیم آفیشلز میں عائشہ اشر منیجر، محتشم رشید کوچ، ثنا رزاق اسسٹنٹ کوچ، باسط علی بیٹنگ کنسلٹنٹ اور ابرار احمد ٹرینر ہوں گے۔ پنجاب کوآپریٹو بینک نے دوستانہ میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد مسلم جمخانہ کو 4 رن سے مات دے دی۔ مونوٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں پنجاب کوآپریٹو بینک نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 285 رنز بنائے۔ طارق محمود 62، نعمان شوکت 61، محمد شہباز 52 اور وقاص جونیئر 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ مسلم جمخانہ کی جانب سے وقاص اسلم اور محمد عمیر نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ مسلم جمخانہ کی ٹیم جواب میں 281 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی اور 4 رن سے میچ ہار گئی۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی رخسانہ ارشد ویمن ہاکی اکیڈمی پھر سے متحرک ہو گئی ہے۔ اکیڈمی میں ہاکی کے رموز سیکھنے والے کھلاڑیوں کی تعداد 60 ہو گئی۔ شہر کی پہلی گرلز ہاکی اکیڈمی کا مزید احوال بتا رہے ہیں اعجاز وسیم باقری فریش۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی پچ 2 پر لگائے گئے رخسانہ ارشد ویمن ہاکی اکیڈمی کے کیمپ میں 6 کوالیفائڈ کوچز نوجوان کھلاڑیوں کو تربیت دینے میں مصروف ہیں۔ ہاکی کے رموز سیکھنے والی کھلاڑیوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لیسکو کے HRD صغیر احمد نے اکیڈمی کا دورہ کیا اور کھلاڑیوں کی ہر ممکن حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی ایسا فیلڈ ہے جس میں خواتین آپ کے برابر پرفارم نہ کر سکیں، صرف ان کو اپرچونٹی دیں اور ان کو سپورٹ دیں۔ ڈیفینیٹلی ان کی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں اینڈ بینگ میل آپ کو ان پرابلم کو ریئلائز کر کے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اکیڈمی ہیڈ سہرش گھومن کے مطابق 60 لڑکیوں کو 3 مختلف ایج گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تمام کھلاڑی 20 سال سے کم عمر ہیں۔ رخسانہ ارشد اکیڈمی میں ہاکی کی تربیت حاصل کرنے والی کھلاڑی پرعزم ہے کہ وہ نہ صرف یہاں سے سیکھ کر بہترین کھلاڑی بنے گی بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے کامیابیاں بھی حاصل کریں گی۔ کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ اعجاز وسیم باکری، سٹی 42۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی نے معاشرے کے محروم طبقے اور کم وسیلہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ مہمان وزیر اعلیٰ میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی وزیر سلیمہ ہاشمی، سیکرٹری ایجوکیشن اور سیکرٹری زکوٰۃ و عشر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
اجلاس میں معاشرے کے محروم اور پسے ہوئے طبقات کی فلاح و بہبود کے حوالے سے مختصر المدت پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں نئے پروگرامز شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تشدد کا شکار افراد کی داد رسی کے لیے ہیلپ لائن قائم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وفاقی حکومت نے 4 DIGs، 6 SSPs اور 4 SPs کے بین الصوبائی تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ DIG قمر الزمان کا بلوچستان سے خیبر پختونخوا، DIGs خان گل اور سیف اللہ فراچہ کا بلوچستان سے IB، جبکہ DIG محمد اشرف کا خیبر پختونخوا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح SSPs محمد امتیاز شاہ، انتصار حسین جعفری، مظہر نواز شیخ، محمد جعفر اور SPs وحید الرحمان خٹک، فروخ بشیر، سید محمد امین، اعتزاز احمد گورائیہ کو فوری طور پر بلوچستان ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکلوں کے لیے نئے پرکشش نمبرز کی سیریز LEL 13 کی نیلامی فرید کوٹ ہاؤس آفس میں ہوئی۔ سب سے زیادہ قیمت LEL 786 نمبر کی لگی جو 10,000 روپے میں فروخت ہوا۔ انسپیکٹر آن کے مطابق یہ سیریز ڈیفنس، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن دفتر سے شروع کی جائے گی۔ نیلامی کے دوران سب سے زیادہ مہنگا پرکشش نمبر LEL 786 10,000 روپے میں شاہد رسول نے خریدا، تاہم 1، 2، 8 اور 9 نمبر کی خریداری میں کسی نے دلچسپی نہیں لی۔ پنجاب کے 28 اضلاع میں 5,326 کانسٹیبلز کی بھرتی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ IG نے لیڈیز پولیس کا کوٹا 5 سے بڑھا کر 15 اور اقلیتوں کا 2 سے بڑھا کر 5% کر دیا۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 مئی ہے۔ صوبے کے 28 اضلاع میں شروع ہونے والے پولیس کی بھرتی کے عمل میں 3,736 کانسٹیبلز میرٹ پر بھرتی کیے جائیں گے، جبکہ ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے 529 سیٹیں رکھی گئی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 801ویں سالانہ عرس کے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور محمد حسن رضوی کی زیر صدارت خواجہ غریب نواز تصوف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ داتا دربار میں واقع مرکز معارف اولیاء سیمینار ہال میں منعقدہ تصوف سیمینار میں ایڈمنسٹریٹر داتا دربار راشد احمد خان، امام اور خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، مینیجر داتا دربار شیخ عبدالقیوم اور مولانا اسحاق سمیت مختلف مدارس کے طلباء نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ دنیا میں اسلام اولیاء کرام کی تعلیمات کی بدولت پھیلا۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر روشنی ڈالی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال رہی آپ جان سکیں گے سٹی کرائم میں۔ اور ناظرین، شادرہ میں کار سوار نے سگنل کی وائلیشن پر روکنے پر وارڈن کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جانیں گے۔ عرفان ملک اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں۔ عرفان، آگاہ کیجیے گا کہ شادرہ میں یہ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، اب سے کچھ دیر پہلے شادرہ چوک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ٹریفک وارڈن اعجاز جو شادرہ چوک میں اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ اس دوران کوٹ لکھپت کی بیگم کوٹ کی جانب سے آنے والی ایک آلٹو کار میں سوار 2 افراد جنہوں نے وائلیشن کی سگنل کی، جس پر ٹریفک وارڈن اعجاز نے ان کو روکا اور اسی دوران ان کے دوران تلخ کلامی ہوئی، اور اس تلخ کلامی کے نتیجے میں جو گاڑی میں جو 2 افراد سوار تھے جن میں الطاف حسین اور اس کا بھائی وقاص حسین جو پیشے سے پراپرٹی ڈیلر ہیں، انہوں نے پیش میں آ کر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اعجاز جو ٹریفک وارڈن ہے اس کو 2 گولیاں لگی، جس کو موقع پر طبی امداد کے لیے جو موقع پہ DSP موجود تھے ٹریفک سرکل، انہوں نے نیو ہاسپٹل انہیں منتقل کیا جہاں ان کی جو حالت اس وقت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، جبکہ دونوں بھائی الطاف حسین اور وقاص حسین کو شادرہ پولیس نے حراست میں لے کر ان کے خلاف۔ جی بہت شکریہ عرفان ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، عرفان ملک ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود تھے اور آگاہ کر رہے تھے شادرہ میں کار سوار نے سگنل کی خلاف ورزی پر روکنے کے خلاف وارڈن کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ ناخلف بیٹے نے مکان اپنے نام کرانے کے لیے اہلیہ کے ساتھ مل کر ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ غمزدہ ماں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی، پولیس نے سنگدل میاں بیوی کو حراست میں لے لیا ہے۔ غوثیہ کالونی کی رہائشی بدقسمت 55 سالہ نسیم اختر بیٹے اور بہو کے تشدد سے زندگی کی بازی ہار گئی۔ بڑا بیٹا شاہد اقبال اور اس کی بیوی سمینہ نسیم اختر پر آدھا مکان اپنے نام کرانے کے لیے دباؤ ڈالتے تھے۔ غازی آباد کے علاقے عثمان نگر میں گھریلو ناچاکی کے باعث خاتون نے دل برداشتہ ہو کر مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق 20 سالہ شاسمین نے سسرالیوں سے جھگڑے کے بعد مبینہ طور پر زہریلی گولیاں کھا لی۔ حالت غیر ہونے پر شاسمین کو سروسز ہسپتال لایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئی ہے۔ دوسری جانب شاسمین کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ شاسمین کو اس کے سسرالیوں نے قتل کیا۔
पुलिस ने शाज़मीन के भाई सादिक की दरख्वास्त पर रिपोर्ट दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मियो अस्पताल डेड हाउस मुंतकिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। झीलदार रोड के रिहायशी अमजद ने इल्जाम आयद किया है कि इंस्पेक्टर एजाज कंबो ने साथियों के हमरा उसकी मां और भाई समेत उसे बिलावजह तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। अमजद का कहना है कि इंस्पेक्टर एजाज अहमद कंबो ने अपनी गाड़ी उनके दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी। गाड़ी हटाने का कहा तो उसने अपने साथियों के हमरा उसे और उसके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया और मौका से फरार हो गया। अमजद ने इल्जाम आयद किया कि एजाज अहमद कंबो मुस्लिम लीग नून का कारकुन है जिसने इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का साथ देने पर उन पर तशद्दुद किया और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट ने यूट्यूब की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर गूगल इंतजामिया से दोबारा जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की अदालत में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक जवाब क्यों दायर नहीं किया गया, जिस पर वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के वकील ने अदालत को बताया कि गूगल इंतजामिया जवाब दायर करने के लिए मुशावरत कर रही है, लिहाजा फाजिल अदालत उन्हें जवाब दायर करने के लिए मजीद मोहलत दे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि यूट्यूब की बंदिश से लाखों सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं, जबकि बेशुमार लोगों का कारोबार यूट्यूब से वाबस्ता है जो उसकी बंदिश के बाद शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। लिहाजा फाजिल अदालत यूट्यूब पर आयद पाबंदी खत्म करने के अहकामात सादिर करे। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने गूगल इंतजामिया को दोबारा जवाब दायर करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। बैंकिंग कोर्ट ने ऑटो लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन पर खुफिया चार्जेस को गैर कानूनी करार देते हुए बैंकों को शहरियों को हरासा न करने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त गुजार इमरान यूनिस, मोहम्मद कासिम, इरफान खालिद, गुलफाम हुसैन, शाहिद रफीक, शेर अहमद, तारिक महमूद, तारिक मुनीर, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद खलील ने बैंकिंग कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने पर्सनल लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड के तमाम वाजिबात की अदायगी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद बैंक इंतजामिया खुफिया चार्जेस वसूल करने के लिए उन्हें हरासा कर रही है। सारिफ अदालत ने ट्यूनिंग के दौरान गाड़ी का इंजन खराब करने पर ऑटो केयर सेंटर कैवल्ट्री ग्राउंड के मालिक को 25,000 रुपए दरख्वास्त गुजार को अदा करने का हुक्म दे दिया है। गुलबर्ग के रिहायशी मोहम्मद अख्तर ने ऑटो केयर सेंटर कैवल्ट्री ग्राउंड के मालिक के खिलाफ 25,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो ब्रेक ठीक कराने के लिए गाड़ी वर्कशॉप ले गए। मैकेनिक ने ट्यूनिंग का मशवरा दिया। ट्यूनिंग के दौरान गाड़ी का इंजन खराब कर दिया गया। अदालत से इस्तदा है कि उन्हें 25,000 रुपए हर्जाना दिलाया जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद वर्कशॉप के मालिक को दरख्वास्त गुजार को 25,000 रुपए अदा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तालीमी सरगर्मियों का अहवाल आप जान सकेंगे सिटी तालीम। सिटी स्कूल के ज़रिए एहतमाम ख़वातीन में सेहत आमा का शऊर उजागर करने के लिए आज की बेटी कल की माँ के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर फौजिया मुन्नो खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रॉयल पाम कंट्री क्लब में मुनाकिदा सेमिनार में सादिया इकबाल, शाजिया ज़ोहरा, मरियम सुहेल, शानदाना अजीज़, ब्यूटिशियन मुसरत मिसबा, इरम यूसुफ, अनीका शफीक, साना गर्देजी, रुखसाना तारिक और सिटी स्कूल के मुख्तलिफ कैंपसेस के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। सेमिनार से खिताब करते हुए मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर फौजिया मुन्नो ने खवातीन की सेहत को आने वाली नस्लों की जिस्मानी और जहनी सेहत के साथ मशरूत करते हुए तालिबात को सेहत की जानिब खुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की। हेडक्वार्टर स्पोर्ट कोर के ज़ैली इदारे लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए एहतमाम फ़न्नी तरबियत में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले 16वें बैच के तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर कैंट में वाक़े हेडक्वार्टर स्पोर्ट कोर में मुनाकिदा तकरीब में ब्रिगेडियर मोहम्मद जमान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइट, ब्रिगेडियर मोहम्मद अशरफ सितारे इम्तियाज, मिलिट्री डायरेक्टर एजुकेशन ने बतौर मेहमानाने खुसूसी शिरकत की। लाइट के 16वें बैच की तकरीब तकसीम असनाद में कंप्यूटर कोर्स, फैब्रिकेटर, लेदर गारमेंट्स, प्लम्बर, वीडियो प्रोडक्शन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, ड्रेस डिजाइनिंग और दीगर कोर्सेज शामिल थे। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के बाद मकामी सतह पर आज 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 53,500 रुपए रही। सोने की कीमतों में कमी के असरात मकामी सतह पर भी देखने में आए। 650 रुपए फी तोला कमी से सोने की कीमत 52,600 रुपए रही। इसी तरह इम्पोर्टेड सोने की फी तोला कीमत 53,500 रुपए, 24 कैरात 10 ग्राम सोने की कीमत 45,857 और 22 कैरात 10 ग्राम सोने की कीमत 42,039 रुपए रही। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर।
एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की खुशी में सनाई होटल में केक काटा गया। सैयद नूर का कहना था कि हुकूमत भारतीय फिल्मों पर टैक्स लगाए ताकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री फल फूल सके। एबट रोड पर वाक़ सनाई होटल में फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन और फिल्म एग्जीबिटर एसोसिएशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की खुशी में केक काटा गया। तकरीब में सैयद नूर, इरफान फुरसट, चौधरी कामरान, जरीर लाशारी, कैसर सनाउल्लाह, सफ्तर खान, फयाज खान और मसूद बट समेत प्रोड्यूसर्स और तकनीककारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिनेमा ओनर एसोसिएशन के साबिक सदर ज़ोरेस लाशारी का कहना है कि सेंसर बोर्ड का चेयरमैन तैनात न होने के बाइस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़ुरेज़ लाशारी ने हुकूमत से अपील की है कि चेयरमैन की तैनाती जल्द अज जल्द की जाए ताकि सेंसर की मुंतज़र फिल्मों को रिलीज किया जा सके। जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है इंपोर्टर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो ये है कि सेंसर बोर्ड का चेयरमैन इस वक्त कोई नहीं है और फिल्में कल रिलीज़ होनी हैं और वो 2-3 फिल्में रुकी हुई हैं इस वजह से कि वो चल नहीं पाएंगी। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।